at the same time, it also gave us walls of, I would say, privacy, of data-driven centers. And that was something which I call the victors who got into Web3 and challenged the Web2. Now I have like esteemed panelists with me, and आज के हम हमारा panel discussion का topic भी है, that is Web2 versus Web3. So wait, मेरा पहला question आपसे है, like what inspired you to be into Web3? Like what sparked that interest? Hello everyone, thank you for joining. It's quite interesting one. I'm passionate about the technology. I love to have new gadgets and और ये स्पीकर में ही नहीं आ रहा है so when I came कैसे across हैं? Bitcoin, so I माइक मोड़ और पढ़ लो managed to तो माइक कहाँ है? mining project किया मैंने utilize माइक नीचे माइक पर so I got to understand one thing what exactly this तब वो technology माइक ऑडियो नहीं is, आएगा फिर नहीं आएगा कोई नहीं how it works. So what I got to know is it's like right now it's we have our own लेना पड़ेगा house. सबको It's like everyone is renting. Web2 is renting and Web3 is owning a house. Right now maybe सबके पास अपना Facebook ID, Instagram ID कुछ भी सबके होगा अपना ID. But you know you don't own it. You just have that ID and the owner is Facebook or Meta, maybe Instagram or someone else. The power which Web3 gives, the ownership is the very big thing. ये सेम वैसा ही जैसे आपका खुद का घर है और एक किराए का घर है. अपने आप किराए के घर में अपनी मर्जी से आप कलर भी चेंज नहीं कर सकते. It's the same something like that. That took my interest, the ownership privacy. That's the main key things. So that actually inspired you to get into Web3, to own a home basically. Yes. जिसको आप पेंट कर सकते हो अपनी मर्जी से. Exactly. मैं अपने सामने तीन भी लोग देखता हूँ. And coming back to the endless domains also, like you started endless domains, and मेरा आपसे भी question है that what inspired you to join the journey with endless domains? क्या vision था जिससे आपने इसको कुछ start करा, and what is your long-term vision also? Thank you, Arun. I think मेरे आंसर जो है विकी के साथ काफ़ी यूनिक सुना because we do a lot of talking about this topic कि Web2, Web3 ownership क्या रहती है. But what inspired me is about the changing technology. आज we have me and Vicky and many others in the room have seen technology changing in the last 20 years. When we were not having a mobile phone also, and now everything is controlled by mobile, and now mobile is controlling you. So it's a vice versa thing. So what inspired us was the changing technology. We have seen Web 1, which was like Google. We are seeing Web 2. We are living in Web 2 right now. What inspired was in Web 3 was ownership. In any of the products right now, what we are using, whether it's social media, email or anything, there is nothing a term called ownership. Everything you do is owned by the large corporates. Whether your Facebook account, whether your Insta account, your email, everything is controlled by them. At least Web3 आने वाली generation के अंदर will get something. You own it and you can decide how much of information you want to give to the community. Otherwise, all the data which is collected by the big organization is going to be played against you. So that is where Web3 always excites me. Vicky already has been into this field from last more than 15 years. So he was just telling me all the benefits. कि Web3 आगे आने से क्या changes आएंगे, who are adopting it. And after getting into this, we have seen, I'm not talking about India के अंदर India के अंदर सबसे ज़्यादा wallets बने हुए, people are using it. But we have seen and we have been influenced by countries like Western countries. So Western countries में जो technology एक developing या developed stage पे आ रही है, so that is the same technology जो अपने developing countries उसको adapt करेंगे. So US, European market, they already understand what is the importance of Web3, blockchain, cryptocurrencies. तो उसी का एक reason था कि let's dive into Web3 and know more about this and how to control the data. That is the most important part. यहाँ पर Apple users कितने हैं? 1, 2, 3, सभी लोग. अभी Apple के ऊपर कोई कोर्ट केस हुआ था, कुछ क्लेम्स उन्होंने इशू किया कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर से. किसी को पता है इस बारे में? कितने Apple यूजर्स हैं? सबने हाथ उठाया तो किसी को पता ही नहीं है. पता है इस बारे में? वो AI उनका नहीं था Siri, exactly. Siri जो भी आप वो डेटा बोलते थे वो डेटा अपने पास स्टोर कर रहा था एंड वो डेटा आगे बेचा जा रहा था. एंड अभी जैसे मेरी विकी से बात हुई, मेरी उनके से भी बात हुई, दे मेंशन अबाउट डेटा एंड प्राइवेसी.
राइट? मतलब आप ये देखो कि वेब 3 में आप वेब 2 में जो आपका डेटा है दैट इज बीइंग ओन्ड बाय सम बिग कॉर्पोरेशंस। एक्चुअल में आपको लगता है शायद आप चैट्स कर रहे हो बट किसी के पास वो चाबी है जो आपकी सारी चैट्स चेक कर सकता है। एंड साथ में दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। एक जब भी हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं वेब 2 एज वेल एज इन वेब 3 तो कुछ आप डिफरेंशिएट कर सकते हो लाइक ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। So hi guys, I am Sarthak, founder and CEO at Blockchain Miners India. So I have a very good question. Differentiating ownership between Web 2 and Web 3. So now आपने एक चीज देखी होगी Web 2 में so many products we've been signing up to. हम लोग back in the days जब Outlook की बात हो रही थी सर Outlook की बात करें हमने देखी थी Outlook से Facebook आता है। तो remember at the end of signing up आपसे क्या पूछते हैं? Agree to all terms and conditions, privacy policy. कभी किसी ने भी यहाँ से शुरू में उसको खोल पढ़ा है कभी? पढ़ा पूरा पढ़ा आपने? फिर भी साइन अप किया होगा आपने? नहीं किया? आप फेसबुक यूज करते हैं? वेरी गुड। एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है? अब नाउ फेसबुक की बात करते हैं मार्क ज़करबर्ग का। अभी आपने एपिक एग्जांपल दिया। सो नाउ I'd like you guys to remember वो टाइम जब मार्क ज़करबर्ग के ऊपर एक सिमिलर केस आया था। We were doing it one point of time. तो क्या आपको नहीं लगता यार कि वहाँ पे आपका डेटा कितना ज़्यादा अनसेफ है? अच्छा आप लोग डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी लोग जानते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स परचेज करते रहते हैं, सब लोग मित्रा से करते हैं या फिर अमेजोन से करते हैं। आपने देखा आपको रीटारगेट किया जाता है, सेम प्रोडक्ट आपको क्रेडिट कार्ड के कितने फ़ोन आ रहे हैं, एक लोन ले लिया तो उसके बाद फ़ोन ही। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी आइडेंटिटी इतनी वल्नरेबल हो चुकी है वेब 2 में कि गूगल के पास आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो और क्या कर रहे हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, दे माइट बी स्टोरिंग दैट डेटा। एक यूजर का बिहेवियर वो हर एक चीज जानते हैं आपके बारे में। वेब 3 brings a revolution to this thing in order to distinguish between ये सब चीजें जो हो रही हैं ऑलरेडी, ये सब we as a smart people in the room we might know, and especially you, what's your name? Uday. So Uday, now people like him will bring a revolution. ये एक छोटा सा डिफरेंस आर्यन आई कुड मेक आउट कि ये एक डिफरेंस हो सकता है, बड़ा डिफरेंस हो सकता है वेब 2 और वेब 3 में। if identity is concerned, because web 3 में it's all volatedness, it's all concealed, privacy है आपकी। अभी वहाँ पे जब सर्च किया था तो वहाँ पे आपने सर्च किया था सर, वहाँ पे volatedness है, nobody could make out कि आपकी real identity क्या हो सकती है। बट सर आपका तो पता है। अब जब हम बात करते हैं डेटा की हो गई, प्राइवेसी की हो गई, एंड जब मैंने अभी इंट्रो भी दिया मैंने कहा था वेब 2 में यूजीसी बहुत है, दैट इज यूजर जनरेटेड कंटेंट। वेब 1 के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, ठीक है, मैं भी नहीं था वेब 1 वाले ज़माने में। वेब 2 वाले ज़माने में इंस्टाग्राम देखा है सबने, स्नैपचैट देखा है, आप दूसरों की पोस्ट के साथ एंगेज कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं। कहाँ पर आ जाता है कंटेंट क्रिएटर्स की बात है। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, स्पेशली कि कैसे हमारा कंटेंट क्रिएशन का पार्ट इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज़ आई हैव विशाल, ही इज आल्सो अ वेरी फेमस कंटेंट क्रिएटर। सो हाउ इज कंटेंट क्रिएशन डिफरेंट इन वेब 2 वर्सेस वेब 3? जो अभी हम लोग ओनरशिप की यहाँ पे बात करें, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और जितने इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं मैं सबको जानता हूँ, उनकी वजह से हमने ट्विटर के ऊपर रीट्वीट कर करके हमने सब कुछ किया। तो एंड में मुझे ट्विटर की तरफ से ये रिवर्ट आता है कि बाय मिस्टेक हो, वो बाय मिस्टेक उन्होंने सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको पता नहीं कितने क्रिएटर्स की तरफ से रीट्वीट, यूजर्स की तरफ से, क्योंकि एक क्रिएटर करेगा उसकी ऑडियंस भी करेगी, तो मेरा चैनल उस वजह से वापस आ गया। लेकिन अगर मेरे पास कुछ होता नहीं पीछे तो वो जो चैनल था मेरा जो खत्म हो जाता, मैं पिछले 3-4 साल से जो उस पर काम कर रहा था वो खत्म हो जाता। तो जो वेब 3 के ऊपर ओनरशिप की बात करते हैं, आई गेस ये सिमिलर उसी से रिलेटेड है कि हमारी ये सब चीज़ें हमें वेब 3 पे होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, जो हम लोगों ने वेब 3 डोमेन के बारे में बात किया था, मैंने आपको मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बताया क्योंकि वेब 2 से हूँ। तो जिस टाइम पे मैं कॉलेज में हुआ करता था, कॉलेज से भी पहले जब स्कूल में होते थे तो हम लोग डेटा ट्रांसफर के लिए फ्लॉपी का यूज़ करते थे और बड़ा वो लगता था कि बाइट्स में बिट्स में डेटा हमारा फ्लॉपी के अंदर आ रहा है। देन जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे एक चीज़ पता चली, सीडी हो गई, उस सीडी में चीज़ें आ गई। देन किसी ने मुझे ये बोला कि सीडी बार बार क्यों नहीं, रीराइटिंग सीडी को नहीं दे, तब पता चला कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि सीडी को राइट कर सकते हैं। देन हम लोग कैसेट्स लेते थे गाने सुनने के लिए उस टाइम पे,
तब पता चला कि कैसेट रिकॉर्ड हो सकती है। सेम टाइम पे मुझे किसी ने बोला कि यार तुम कैसेट क्यों ले रहे हो, तुम सीडी लो, सीडी की क्वालिटी अच्छी होती है। उसके बाद पता चला एक डीवीडी आता है कुछ, उसमें क्या होता है 100 गाने आ जाते हैं। फिर पता चला पेन ड्राइव होती है, वो सीडी जैसी होती है पर उसमें मे बी उसका 20 कुछ जीबी का डेटा कुछ होता है। देन हमें पता चला पालिका में एक पेन ड्राइव मिलेगी जिसमें 128 जीबी का है। तो मैं कॉलेज से स्पेशली दिल्ली आया, वो पेन ड्राइव मिलेगी, पेन ड्राइव चली नहीं, चीज़ें धीरे धीरे इस तरीके से चेंज हुई। 2009 और 8 की आई गेस बात है, मैंने फर्स्ट टाइम पे एप्पल का फ़ोन देखा था जो टच वाला था, और मैं अपने किसी रिलेटिव के साथ था, मैंने हमारा डिस्कशन चल रहा था उस फ़ोन को लेकर। तो जो था उन्होंने मुझे ये बोला यार ये बेकार है क्योंकि ये टच है, कल को टच खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारा वो जो कीपैड वाला फ़ोन है वही चल रहा है। और आज की डेट में सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई। 2010 में मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी एज ए डेवलपर। उस टाइम पे जो मेरी कंपनी थी वो एक आईटी कंपनी थी, तो उन्होंने क्या करा, एक सेपरेट डिवीजन स्टार्ट किया जिसमें 2 लोग थे। उन 2 का काम ये था कि दिन भर में 100 डोमेन स्कैन करने हैं और एंड ऑफ द डे एक्सेल में एक रिपोर्ट डाल के देंगे। 2 साल तक उस कंपनी ने टोटल 25,000 डोमेन्स खरीदे। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे हर नाम से डोमेन मिलता था। आज की डेट में तो आपको .com, .in, .info में कुछ मिलता नहीं। 2016 में वो एक आईटी कंपनी जो अच्छी बड़ी चल रही थी, उसने आईटी कंपनी शट डाउन कर दी। जो उन्होंने 25,000 डोमेन खरीदे थे, सिर्फ वो वही डोमेन आज अभी भी बेच रहे हैं और वो उससे बिलियंस में इस टाइम पे कमा रहे हैं। तो जो सेम चीज़ें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी जो आपने पॉइंट्स पूछा था मैंने उसको छोड़ दिए हैं। तो जब आप यहाँ पे वेब 2 कंटेंट और वेब 3 कंटेंट की बात कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब इंस्टाग्राम पे आप कोई रील देखते हैं, आप बस वो रील देख के अगर आप रियलिटी में देखें तो आप अपना खाली नेट बर्बाद कर रहे हैं और अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। नेट तो चलो फ्री में मिल रहा है जियो के आने के बाद से, पर जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है वो आप अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हो, उस टाइम के बदले आपको कुछ मिल भी नहीं रहा। वेब 3 सबसे बड़ी ये चीज़ बोल रहा है कि अगर आपको टाइम कंज्यूम कर रहे हो ना, हम उसके बदले कुछ देंगे आपको, चीज़ों को टोकनाइज करेंगे। तो क्रिएटर के लिए तो चलो अच्छा है, उसकी ओनरशिप यहाँ पे बन रही है, पर यूजर के लिए सबसे अच्छा ये है, भले आप ब्रेव पे चले जाओ तो बोल रहे हैं कि अगर आप ब्रेव को ब्राउज करोगे तो हम उसके बदले आपको कुछ एटलीस्ट चीजें टोकनाइज होंगी, जो कि वेब 2 के अंदर नहीं, जो आई गेस होना चाहिए। और अगेन हम लोग वेब 3 में अगर कोई मेरे से पूछा तो आई गेस वेब 3 और वेब 2 को जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि वेब 2 एक एडल्ट है और वेब 3 ना एक बच्चा है जो अभी न्यू बॉर्न तो नहीं बोल सकते, अभी पैदा होकर 2-3 साल का हुआ है। और इतनी ज्यादा चीजें हैं वेब 3 के अंदर जिसके बारे में अभी हम लोग बात ही नहीं करते। अभी तो हम कोई क्रिप्टोस में है, क्रिप्टो के बाद हम लोग NFT में आ गए, NFT के बाद हम लोग अभी डोमेन्स की बात करते हैं। अभी एंडलेस चीजें हैं। और अगर कोई डेवलपर है यहाँ पे, मैंने अपने डेवलपमेंट में जब हम राजीव ऑर्कुट की बात कर रहे थे, ऑर्कुट का मुझे याद है कॉलेज में हम लोग करते थे, तो मैंने वही टाइम पे टेक्नोलॉजीज को चेंज होते हुए देखा कि कब रिएक्ट आया, कब अगर हम PHP की बात करें, जूमला, ड्रूपल, ओपनकार्ट, ये सारी चीज़ें वही सेम टाइम अभी वेब 3 में चल रहा है। तो अगर आप अर्ली वेब 3 को अडॉप्ट कर लोगे, अगर आप एज अ डेवलपर हो यहाँ पे, आप अर्ली चीज़ों को अडॉप्ट कर लोगे, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। नहीं तो आज से 10 साल बाद अगर आप वेब 2 में काम कर रहे हो, आपके लिए चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। AI उसको रिप्लेस कर रहा है, वेब 3 को भी रिप्लेस करेगा, पर वो रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम होगा। तो अगर आप डेवलपर हो, किसी कोडिंग बैकग्राउंड से हो, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप वेब 3 पे जल्दी अपने को मूव कर लो। अंटिल दिस आपके टाइम लग जाएगा, चीज़ें खराब हो जाएगी। तो भी जैसे विशाल ने बताया ना यूट्यूब चैनल वाला सीन, एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे जब आप वो रील स्क्रॉल करना चालू करता है, आपका अंगूठा नहीं रुकता है ना। तो एक्चुअली में ना वेब 2 ने हमें कंज्यूमर से बजाय प्रोडक्ट बना दिया इन रियलिटी। हम मार्केट में बिकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो एक्चुअल में इंस्टाग्राम आपके ऊपर पैसा कमा रहा है, एंड इन रिटर्न जैसे विशाल ने बताया यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, बट अगर हम मेटा की बात करें दैट इज अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम। एंड ये जो पूरा सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, चाहे हम यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करें, ट्विटर अकाउंट की बात करें, ये सारे बैन हो जाते हैं एंड कभी कभार आपको रीजंस भी नहीं दिए जाते। जैसे भी विशाल ने बताया कि कंटेंट क्रिएटर्स ने प्रेशर बनाया रीट्वीट कर करके, तब वो चैनल स्टार्ट हुआ, ऑफिस मिला। सेम हमारे साथ भी हुआ था, तो हमारा भी यूट्यूब चैनल था फिल्म के नाम से। एंड उसमें क्या हुआ, बैक इन दिसंबर जब IBW वाला टाइम चल रहा था, देन वी हैड अ पॉडकास्ट विद गौरव ढाके, हु इज द फाउंडर ऑफ बिटवीनस एक्सचेंज। हमने उनका पॉडकास्ट डाला, ऑफ कोर्स द ऑडियंस वाज ऑलरेडी पिस्ड ऑफ, नेगेटिव कमेंट्स आने चालू हो गए, बट हमारा यहाँ पॉडकास्ट था बिकॉज वी वांटेड टू
cover the story also. हुआ क्या, हफ्ते भर बाद हमारा चैनल was removed directly from YouTube. Then हमने YouTube पे न्यूज़ वगैरह लिखी कि आपने ऐसे कैसे रिमूव कर दिया, पॉडकास्ट था, एजुकेशनल बेस था, कुछ भी हमने ना पैसों के बारे में बात की, nothing else. कुछ भी नहीं कि आपका हमें अब्यूसिव कंटेंट मिला है, हमें आपका डेंजरस कंटेंट मिला, एंड इफ यू गो विद द पॉलिसीज उसमें लगता है कि आप ड्रग्स प्रमोट कर रहे हो, अल्कोहल प्रमोट कर रहे हो, वेपन्स प्रमोट कर रहे हो, तो आपका रिमूव होगा. देन वी हैड अ सॉर्ट ऑफ लीगल बैटल विद यूट्यूब, करीबन वो ऑलमोस्ट 1 महीना चला, तब जाके हम लोग को चैनल वापस मिला. तो मतलब दैट इज द रियलिटी. अगर यहाँ पर सपोर्ट था, चैनल वापस मिल गया, हमने लीगल अफोर्ड कर सकते थे, हमने लीगल बैटल करा, तब जाके हमें चैनल वापस मिला. बट फॉर अ न्यू कंटेंट क्रिएटर मुझे लगता है वो बहुत बड़ी डिफिकल्टी है ये. एंड सेम यहाँ पे जैसे हमारे पास वेब 3 की बहुत सारी ऑडियंस भी है हु आर माइग्रेटिंग टू वेब 3 या जिन्होंने अभी भी वेब 3 में एंट्री की है. हिमांशु, because you are also founder and a consultant also, what are the mistakes that one should avoid actually from going to from web 2 to web 3? So one thing that is important to understand, because so मैं काफ़ी कंसल्टेंसी करता हूँ and I've been into industry for 8 years. So one thing that I've noticed कि web 2 से जो web 3 की तरफ माइग्रेट करते हैं, so one of the bigger challenge जो अभी आ रहा है यूजर्स को और जो अभी फाउंडर्स को जो आता है वो ये है कि they don't understand the concept कि web 3 काम कैसे करता है. एंड सेकेंड इसके उसको एडॉप्शन कैसे कर सकते हैं. जैसे कि अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री लिमिटेड है, वो ज़्यादा 10 मिलियन 5 मिलियन यूजर्स हैं, उनको ही रिटारगेट करना है. हर दिन 10 स्टार्टअप आ रहे हैं, आप रिटारगेट करते हैं एंड देयर इज नो न्यू कॉन्सेप्ट आर बिल्डिंग. सेकेंडली कि यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा टफ है, लोग ज्वाइन ईजिली नहीं कर पाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट पीपल फेस. एंड सेकेंडली वेब 2 में जो बड़ा प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी प्रिवेसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं. इवन रिसेंटली सो आई वर्क फॉर अ कंपनी कॉल्ड वॉटरा, दे आर फ्रॉम कनाडा. दे डू वर्क ऑन डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज पे काम कर रहे हैं and they are trying to solve a bigger challenge, which is data security. So they are creating a decentralized node systems where you can store your data और आप उसको डेटा को प्राइवेट इसको सेल कैसे करोगे, which is missing in web 2. तो web 2 में जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है एक सेकेंडली why people are choosing web 2 because it's easy to access. तो web 3 में जो चैलेंज है वो एक्सेसिबिलिटी का है कि कर पाते. तो if you have to use a web 3 प्रोडक्ट, आपको वॉलेट चाहिए, फिर आपको वॉलेट कनेक्ट करना है सिस्टम. सो आई बीन वर्किंग विद टॉम, काफ़ी दिनों से मैं काम कर रहा हूँ. तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्व की वो है यूज़र एक्सेसिबिलिटी की, कि आप आसानी से टॉम में माइग्रेट कर सकते हो फ्रॉम अ टेलीग्राम मिनी ऐप के थ्रू. ठीक है. सेकेंडली सेम कॉन्सेप्ट सोलाना ब्रेंच में जिन्होंने अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन लेकर के आए, तो आप इजी गूगल क्लाउड गूगल अकाउंट यूज़ करके आप कर सकते हो. बट स्टिल देयर इज वन थिंग दैट इज डिफरेंट कि आपका डेटा इज योर ओन. सो आपका डेटा आपके वॉलेट में स्टोर्ड है एंड आपका कभी अगर अकाउंट वेब 2 में सर अकाउंट डिलीट के प्रॉब्लम्स हैं. इवन देयर इज अ प्रॉब्लम कि एक गेमर था, उसका अकाउंट डिलीट हो गया, उसने एसेट्स रखे थे वो सारे चले गए. सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन वेब 2 इंडस्ट्री एंड दैट इज वेयर वेब 3 इज कमिंग इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो डेटा आपका रहता है, यू आर द ओनर ऑफ द डेटा. एंड पीपल हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वेब 2 टू वेब 3 दे हैव टू कंसीडर वन थिंग इज लाइक चैलेंज विल बी एवरीवेयर. और अगले 5-10 सालों में इंडस्ट्री विल ग्रो, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नया यूजर्स आएंगे. So one thing that Web3 people has to work is to make the user onboarding easy, and that's where a lot of blockchain and product are working at. And secondly, if you are migrating from Web 2 to Web 3, तो आपको security privacy मिल जाती है. And secondly, आपको product अच्छा बनाना पड़ेगा. Product वो बनाओ जो user को चाहिए. That's a bigger challenge because I have seen कि मैंने बहुत सारे founders के साथ काम किया है. So they start building products and उनको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है because they think the product is good but they don't take feedbacks. So मैं 2 प्रोडक्ट्स पे काम किया, I like my past experience and both of the product failed very badly because they think product is good so they launched it. And when जब वो प्रोडक्ट मार्केट में गया there is no users और there is no adoption. So this is a bigger challenge. So अगर आप Web 2 से Web 3 माइग्रेट कर रहे हो because of पैसे के लिए कि फंडिंग मिल जाएगी आसानी से, so it should not be the प्रोडक्ट लॉन्च किया था. I launched the product, थोड़ा मैंने यूजर इंटरेक्शन लिया, though we got the user, we got made the revenue. The problem is it's not scalable for long run. So मैंने इसको shut down किया, then we started pivoting to something else. So one of the things जो हमको सीखना पड़ेगा वो ये कि if you are building product, you also understand the product might fail and if it fails, you accept it. जो Web 2 founders नहीं करते हैं because they think कि उन्होंने बनाया है तो product अच्छा होगा. So I guess हमको वो एक learning है. Secondly आपको Web 3 को सिर्फ इसलिए नहीं आना कि यहाँ पे पैसे ज़्यादा है या हाइप ज़्यादा है. It's not the case. Web 3 is really solving a bigger problem.
जो कि हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स, टेक अ फीडबैक एंड ऑलवेज फॉलो द सेट थिंग। सो प्रोडक्ट में आइडिया लेकर के आओ, उसको टेक अ फीडबैक, build MVP, retest it, take user feedbacks, do it again, and this process will continue to happen till you launch the testing and give the traction. And because the market has changed, पहले इन्वेस्टमेंट मिल जाती थी because you have the idea. हमने 2019 में 20 के आसपास I work for a startup. We raised 4.5 million just with an idea, not with a product. So that era was different. The era is different now. People ask for traction, they ask for volume, they ask for whether you have a working product or not. So अभी हमने को वो change करना पड़ेगा, product build करना पड़ेगा, traction दिखाने पड़ेंगे, and आने वाले like next 2 to 3 years, people will investors will ask for revenue, whether you are making revenue or not, whether it is $10 or $20, तो revenue centric ecosystem होने वाला है. So I guess this is changing. तो हमें as a Web2 founder or as a growing founder, we have to look at the industry कैसे change हो रही है and what we have to offer to the audience and how we can differentiate from others and how we can make a product accessible for everybody, not only for Web2 but for Web2 plus Web3 audience. चीज़ें ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। आज हम लोग 2025 में हम लोग सोशल मीडिया, वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट और इंडस्ट्री में इतनी चीज़ें देखते हैं। मुझे याद है 2010 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। उस टाइम पे एक वेबसाइट के अंदर एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज की ही अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू हो गई थी। मुझे याद है जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक फॉर्म है जिसमें 3 फील्ड है, इसका डेटाबेस में डालना, दैट्स इट। अगर वो भी किसी ने सॉल्व कर दिया तो उसको जॉब मिल जाती थी, क्योंकि चीज़ें थी नहीं। मैं अगर आपसे बात करूँ 2010 और 11 की, उस टाइम पे सोशल मीडिया का मतलब होता था अगर कोई कंपनी रन कर रही है, सिंपल सी चीज़ फेसबुक और ट्विटर पे पोस्ट डाल दो, दैट्स इट। वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आज अगर आप बोलोगे फेसबुक पे पोस्ट डालना है, यही पड़ा है, अपने आप आइडिया है, सेम जगह पे हम लोग बैठे हैं। तो पता नहीं 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, पर बहुत कुछ होने वाला है और बहुत अर्ली स्टेज में है हम सब चीज़ें। यहाँ पे हिमांशु ने वैसे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स ऐड ऑन करे थे MVP वगैरह से रिलेटेड, और जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं ना, मैं उनसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई आइडिया अभी के लिए Web2 में ऑलरेडी अच्छे से चल रहा है ना, उसे ज़बरदस्ती Web3 में मत लाना। बिकॉज आई बिलीव कि हम अभी भी अर्ली है। बिकॉज आई वंस वाज अ जज एट अ हैकाथॉन, हुआ गया एक प्रोजेक्ट लेकर आई थी टीम, दे वर बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कपड़े रेंट आउट कर सकते हो, तो सारा डेटा जो है वो ब्लॉकचेन का स्टोर हो। इसकी ज़रूरत है हमें। एंड आप क्वेश्चन पूछो ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट क्यों है डेटा प्राइवेसी को, ये है कि ट्रांसपेरेंट है। अगर अभी भी आप सिर्फ ब्लॉकचेन ज़बरदस्ती इंटीग्रेट कर रहे हो ना जहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। शायद 10 साल बाद, 15 साल बाद जब ब्लॉकचेन इतनी मेन स्ट्रीम हो चुकी है कि आपका वॉलेट ही आपके पॉकेट में घूम रहा है, तो शायद आप ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। बट अभी मुझे नहीं लगता कोई भी रिक्वायरमेंट है। And like in the panel we have like 3 content creators also, and I'm sure कि जितनी भी यहाँ पे audience है, they are also using social media platforms. तो आप Web3 के social media platforms integrate करो। Like there is platform Keep हो गया, आपका Esency हो गया, 3speech.tv हो गया, ऐसे भी platforms हैं जहाँ पर आप सिर्फ पोस्ट डाल रहे हो, आप ब्लॉग डाल रहे हो, आप वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, नॉट पोस्ट कर रहे हो, you are still getting some rewards। तो आपका वहाँ पे टाइम इंसेंटिवाइज हो। एंड ऑफ कोर्स जब भी हम Web2 से Web3 में एंट्री करते हैं, जब गलतियाँ होना बहुत जाहिर सी चीज़ है, इंसान है, गलतियाँ सबसे होती हैं। दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल द पैनलिस्ट कि जब आपने Web2 से Web3 में एंट्री करेंगे, बिकॉज एवरीवन आई बिलीव इज फ्रॉम डिफरेंट रोल्स, वी हैव बैकग्राउंड इन बिजनेस, माइनिंग, वी हैव कंटेंट क्रिएशन, वी हैव कंसल्टिंग। सो एक ऐसी गलती है व्हिच कॉस्ट यू बिग व्हेन यू वर माइग्रेटिंग फ्रॉम Web2 टू Web3। गलती तो नहीं है बहुत कोई क्योंकि there are so many hurdles, you don't have a complete ecosystem, and I started like very early, so उस टाइम सोर्सेज नहीं थे। आज तो हम सब इस बारे में बात कर रहे हैं, हमारे वीडियोस है, तो उस टाइम पे हमारे कुछ भी नहीं होता। उधर जितने लोगों से जो लोग वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उन्हीं से कनेक्ट कर करके सीखना पड़ता था, या ऑनलाइन देयर वाज हार्डली डेटा ऑनलाइन, तो सीखे वहाँ से। लेकिन धीरे धीरे एक चीज़ जर्नी में ये समझ में आया कि एक बेसिक नॉलेज, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट रादर देन बिल्डिंग समथिंग। Web2
मेरे को इस इंडस्ट्री में एक बेनिफिट वेब 2 से वेब 3 में आने का ये बेनिफिट इस तरह से हुआ कि जब मैंने अपना डोमेन्स को बाय किया फर्स्ट टाइम पे, तो देयर वाज नो यूज केस फॉर मी. आई परचेज डोमेन्स इन 2019. तो इट वाज जस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मी. अब जब मैंने वो परचेज किया तो मुझे समझ में आया मैं करूँगा क्या इसका. मैंने ले तो लिया, 10 साल बाद 15 साल बाद क्या पता कहाँ आए. तो आई गॉट एन आइडिया कि व्हाट जब मेरे जैसे बहुत सारे हैं और ये प्रोडक्ट इट्स नॉट लाइक आई एम सेलिंग एनी कॉइन और समथिंग कि जो आपका कॉइन है हम वो बेच रहे हैं या NFT बेच रहे हैं. तो इट गेव मी समथिंग मोर कि जहाँ पे हम इसको यूज केस इट्स अ रियल यूज केस जहाँ पे उसको कन्वर्ट करें. तो दैट वाज समथिंग कि जहाँ पे हमारे लिए ईज भी कुछ चीज़ें बट या मिस्टेक्स सीखते हैं. मतलब मिस्टेक्स आई फॉरगेट बट ये उससे लर्न कर लेते हैं और क्या. Thank you, Aryan. I think it's a very difficult question to answer देना चाहिए because कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट की बात करें तो मिस्टेक्स के बिना बनी नहीं. तो आई थिंक मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स करी है इसके अंदर. तो एक जो मेन चीज़ जो अभी भी मैं मिस्टेक करते रहता हूँ रेगुलरली, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज. कभी भी डोंट फील लाइक कि आप इस चीज़ को जानते हो इफ यू आर अ टॉपर ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड कि उसके आगे कुछ और अलग इन्फॉर्मेशन नहीं है. When I started with the project, I had a very basic knowledge. Vicky taught me a lot about key wallets और इन सब चीज़ों के बारे में. Then I thought कि विक्की ने मुझे एक basic information दे दी. मगर इसके आगे भी बहुत कुछ है. If you want to create a very good product, तो एक knowledge को कभी भी इसके अंदर आप neglect मत करिएगा. Because जो आप यहाँ सोच रहे हैं आपसे 3 steps आगे 10 steps आगे someone who is outside India also who is creating the same thing and he might get a better team. तो अपनी नॉलेज जो भी है उसको आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिए. गो टू द मार्केट बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोडक्ट. बिकॉज जो मैं और विकी भी बीच में कभी बात करते थे तो वी डिस्कस समथिंग ओके ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए. देयर शुड बी सम प्रोडक्ट जो उसके अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर भी होना चाहिए. एंड आफ्टर अ वीक और समथिंग वी गॉट अ न्यूज़ कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर 1 साल से है. तो दैट इज समथिंग व्हाट गेव अस अ वेरी गुड फीडबैक इन क्रिएटिंग द प्रोडक्ट कि चाहे हमारा प्रोडक्ट कोई सा भी हो या कैसे भी हम लोग क्रिएट करें, you should have a proper knowledge about that product with your team and should be learning every day. So I recommend everyone who wants to go into Web3 subscribe to some good channels also so that your daily knowledge is groomed. I have subscribed to many Web3 related newsletters that come early in the morning. जो कभी US टाइम के अंदर भी है तो यूरोपियन टाइम के भी. So they gave me a very good knowledge कि आज अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो ब्लॉकचेन के अंदर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या हुआ. इफ यू टॉक अबाउट NFTs और एनी अदर न्यू डेवलपमेंट तो वो वहाँ पर बहुत है. सो माय वन थिंग इज नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट. द लर्निंग प्रोसेस इज यू शुड लर्न एंड मोर एंड रीड मोर अबाउट ब्लॉकचेन. चलो वेरी गुड क्वेश्चन आर्यन, बहुत बढ़िया सवाल है ये. एंड मतलब मैं तब से अपने अंदर छाप के देख रहा था डीप डाउन कि कहाँ से गलतियाँ बिगेन होती है एंड कैसे हम लोग उस पर थोड़ी मरम्मत करके सीमेंट ठीक है सीलन होती क्या करते हैं ये सब करते हैं. ठीक है. तो नाउ आई लाइक टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट कि जब मैं बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग फ्रॉम MSR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर. तो जब मुझे क्रिप्टो स्पेस के बारे में पता चला तो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, वेरी न्यू फॉर मी. एंड मतलब मैंने वी स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट्स. फिर उसके बाद जब माइनिंग घुसे तो धीरे धीरे देयर वाज अ चैलेंज फॉर मी जो कि काफ़ी एक दो बार डिस्कस हुआ है यहाँ पे कि क्रिएटिंग योर आइडेंटिटी. मिस्टर राजीव आनंद ही टोल्ड प्रीवियस इन हिज सेशन अबाउट द फर्स्ट स्टेप विच समवन कैन मेक इज अ डोमेन रजिस्टर. ठीक है. एक डोमेन रजिस्टर करता हूँ मैं, वहाँ पे blockchain-miners.in.com भी था नहीं अवेलेबल एंड इट वाज कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी. कुछ डॉलर जीरो बहुत दिख रहे थे मुझे उसमें. मैंने कहा यार तोहफा की बात है. तो दैट्स हाउ इट बिगन इन blockchain-miners.in लेके. एंड मैंने बैठा अपना विक्स खोला, अपना खुद ही बना डाली ड्रैग एंड ड्रॉप एंड उसे यूज़ करके. फिर उसके बाद विशाल लाइक टोल्ड एक लोगो बनाया और पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम और जाके पार्टी करी यार चालू हो गया काम चालू हो गया. मजा. The moment you start spending for something on Web2, so now these people are Web2 people are very smart. And these are like monstrous people who want to just make money out of you. Now you are the product like Aryan said. तो वहाँ पे क्या हुआ ना, वहाँ पे as soon as I spend, there be users coming on my platform या फिर
लाइक्स आ जाएंगे, एंगेजमेंट्स आ जाएंगे, ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू कम। ठीक है भैया, खत्म हो गए पैसे, खत्म हो गए, उन्होंने रीच ही देना बंद कर दिया ना। ऑर्गेनिक रीच देती नहीं है यार, मतलब दीज पीपल आर सच कि आपका नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर होगा, कुछ रील्स बना रहा होगा, मतलब देयर आर सम एब्सोल्युटली यूजलेस कंटेंट ऑन यू नो इंस्टाग्राम एंड भाई पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन दिस थिंग। वहाँ मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। टिकटॉक बंद करना वाज अ रेवोल्यूशन, ठीक है, बट रील्स का चालू हो जाना वाज अनदर थिंग। मतलब वो जाए कहाँ, पीपल वर यू नो वेरी वेरी स्केयर्ड। अब एक मेरा फ्रेंड है, उसके यहाँ पे एक मेड थी, ठीक है, शी यूज्ड टू मतलब टिकटॉक पे रील्स बनाती है, शी वाज प्रीटी पॉपुलर, ठीक है। एंड एक दिन क्या हुआ कि हम लोग गए उसके घर पे, ऐसे वेट कर रहा था, मैं स्नैक्स ऑर्डर कह रहा है यार, वो रो रही बैठी सुबह से, मम्मी उसके पास बैठी, क्यों? क्योंकि उसका टिकटॉक बंद हो गया है ना, अकाउंट बेचारी कहते हैं कंटेंट क्रिएट करती थी वो। पूरा इस तरह के चैलेंजेस बंद हो जाना, ये सब होना यार, ये सब दे वांट टू कंट्रोल, ठीक है। अब क्रिप्टो का जो रेवोल्यूशन था वो कहीं ना कहीं एक तरह से सेंट्रलाइजेशन जो आरबीआई है या फिर कोई भी फिएट करेंसी है उसके विपरीत यहाँ पे हम लोग को एक ऑटोनॉमी मिलती है, एक यू नो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम लोग की एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, बहुत ईज ऑफ डूइंग बना हुआ रहता है। So now these type of mistakes which we do in Web 2, they are not mistakes. They are them controlling you, which you will think कि वो आप गलती कर रहे हो because algorithm ऐसी है। algorithm ऐसी है ना कि यार YouTube के algorithm मैंने समझ ली, अब मैं क्रैक कर लूँगा यार, मेरा 1 मिलियन व्यू आएगा, मेरा मोनेटाइज होगा। तो ना ये algorithm क्या है यार? ये वो लोग का तरीके आप लोग से ही सीख रहे हैं यार। आप लोग नई नई चीज़ें हरकतें करोगे, वो आपका बिहेवियर बन जाएगा, उस बिहेवियर के हिसाब से algorithm वो चेंज कर देंगे, एंड देन बोला द बिग विनर इज गूगल, द बिग विनर इज मेटा, एंड बिग विनर इज माइक्रोसॉफ्ट। तो these three companies are owning a big part of your life. आज नहीं तो कल ये चीज़ आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा, एंड दिस इज द टाइम। अब जब हाँ बैक एट द टाइम जब फिर मैंने वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, वो सब किया, तो धीरे धीरे एक जर्नी में एक चीज़ समझ में तो आ गई, जहाँ रीच कम हुई वहाँ मुझे तो ये समझ आया यार Web 2 बेकार। जब वो आपको मतलब आपके टैलेंट के लिए, आपके कंटेंट के लिए आपको प्रेज ही नहीं कर रहा है कोई, मतलब वहाँ पे एक तरह से यू नो मेंटल चल रही है, लोग एक सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं, एल्गोरिथम के पीछे भाग रहे हैं यार। वहाँ पे मेंटर्स और टीचर्स सिखा रहे हैं, अच्छा आप ऐसे डिजिटल मार्केटिंग करो, आप ऐसे कंटेंट क्रिएट करो। तो दीज थिंग्स जो व्यक्ति एट देयर अपना स्पॉट तो रिजर्व कर लो कम से कम। दैट बिगिंस विद ओजी, यू नो ओजी जेनेसिस। आप वहाँ से एक अपनी आइडेंटिटी ऑब्वियसली ले सकते हो। अभी अभी 1 महीने पहले जब हम मिले थे यहाँ पे Web3 कनेक्ट्स में, तो विकी सर आपकी बहुत याद आ रही थी, बहुत मिस किया, ठीक है। तो उस दिन मैं बैठा एंड जय हम लोग को भी बता रहा था कि कैसे हम लोग परचेज करते हैं। तो वहाँ पे ड्यूरिंग द सेशन आई ओपन माई लैपटॉप, मैंने वहाँ पे अपना MB माइनस, अपना नाम, अपनी वाइफ का नाम सब कुछ डाला वहाँ पे, एंड एक साथ बंडल में 5-10 डोमेन खरीदा तुरंत। तो मतलब वो एक ईज, मैंने अपना पता है मेरे दिमाग में आया, मैंने तो .eth भी लिया था, उसका क्या हुआ, मैं वहाँ ओपन सी अपना वहाँ से जब खोला एक्सपायर्ड, वहाँ लिख के आ रहा एक्सपायर्ड, ठीक है। मतलब ये एक थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा, लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या चीज़ें बेनिफिट रहेगी, तो मतलब उस हिसाब से आप, एंड ऑब्वियसली ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, बट आप सेफ रहो, हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करो भाई, ठीक है, और सेफ रहो, कीप योर क्रिप्टो टू योरसेल्फ। दूसरे पड़ोसी घर पे ही रखना ना क्रिप्टो, है ना, नॉन कस्टमर वो एक्सचेंज में नहीं रखना ना। वजीर एक्स वाले तो पता नहीं क्या होगा, वजीर एक्स का 2000 करोड़ क्या, मेरी बहुत पैसे चल रही है। एनीवे चलो, मिस्टेक्स ये भी एक ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है ये, दिस एक्चुअली कॉस्टेड मी अ लॉट ऑफ मनी, तो ये मिस्टेक थी एक, है ना। दैट्स व्हाई आई हैव बीन फोकसिंग ऑन दिस कि पीपल शुड यूज हार्डवेयर वॉलेट्स, कीप योर क्रिप्टो टू योरसेल्फ। अब सक्षम क्रिप्टो का हार्डवेयर वॉलेट में रखना ना, हाँ बेस्ट है ना, ठीक है। मतलब I have seen just a small example. Someone was browsing through a website. I had to send him some $800 for an event. मतलब मैंने आज ट्रांसफर किया, उसने आज नया अकाउंट बनाया, उसके ब्राउजर में कोई वायरस था, someone added ETH, तो मैंने उसको USDT भेजा ETH पे, someone added ETH to his wallet, उन्होंने सारा USDT निकाल लिया और जो रिमेनिंग ETH था वो भी निकाल लिया। मतलब विदिन 1 डे, मतलब आज मॉर्निंग मैंने भेजा और इवनिंग में क्या था, wallet खाली था।
Exactly, मतलब this is another concern for early Web3 users. मतलब make sure you read before signing the contract. ठीक है ना? अब MetaMask भी पूछता है यार, you have to. मतलब sometimes you might get a phishing attack for your own NFT to re-verify your NFT, something like that. तो मतलब obviously NFT once taken is your, ठीक है, domain once registered is your. दोबारा आपको बस कोई पूछेगा नहीं, ठीक है. So you have to be careful when you use such tools and places on Web3. So next one. So पहला तो जो अंकित ने बोला यहाँ पे, वो जो मैंने बोला है, तो एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि मेरी व्यक्ति की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई क्रिप्टो से. मेरा जो बैकग्राउंड है वो एज ए डेवलपर का है. सो 2011 की बात है, ये जो मिस्टेक्स है वो बता रहा हूँ. 2011 में अमिताभ बच्चन का नाम आया था काफ़ी ज़्यादा कि उन्होंने बिटकॉइन खरीदा. मुझे नहीं पता अभी इतिहास में कितने लोगों को पता है इस चीज़ का. सो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला, हम लोगों ने कोशिश करी बाय करने की, पर बाय नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे एक्सचेंजेस नहीं होते. आपको एक वेबसाइट से बाय करने होते थे, दूसरी तरफ से पेपाल से ट्रांजैक्शन करना होता था. जो पेपाल का ट्रांजैक्शन हुआ उसकी आईडी आपको वेबसाइट पे डालते थे, फिर आपको मिलती थी. हमने 11 में इग्नोर किया. 2013 में फिर से इंडिया में कहानी होने लगी बिटकॉइन की. जब बिटकॉइन का प्राइस पंप हुआ, हमने फिर से अगेन ट्राई किया. फिर से सेम कहानी है. उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड चाहिए था मुझे, तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था. करते करते जब बिटकॉइन $1 का था, वहाँ से जब फाइनली बिटकॉइन $320 का आ गया, I'm talking about 2015, तब मैंने फर्स्ट टाइम बाय किया. तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि जब भी किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होती है तो उसको समझने की कोशिश करें. तब भी ये लगा कि चलो ठीक है, आप $500 डाल देते हैं, तो 1.5 बिटकॉइन इस तरीके से ले लेते हैं. जब भी किसी टेक्नोलॉजी की बात होती है उसको समझने की कोशिश करो, इग्नोर मत करो. गलती से अगर बात हो रही है तो थोड़ा टाइम दो, समझो, उसके बाद अगर आपको डेफिनेटली कुछ टाइम बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, तो इग्नोर किसी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल नहीं. $millions मैंने इसके बाद. So mistakes. So I guess मैंने बहुत ज़्यादा mistakes किए. I've been doing it बहुत ज़्यादा. I guess. So I started, जो मेरे को भी बहुत जल्दी अमीर बनना था. So I started with mining. That was the first thing that I did. और उसमें cloud mining was a bigger concept. Everybody was हाँ, तो cloud mining एक बड़ा concept चल रहा था उसमें, and everybody was buying Bitcoin, वो stake कर रहा था, and they were thinking कि उसका payout काफ़ी अच्छा मिलेगा. तो हमने cloud mining से मैंने enter किया था. I entered, मैंने लोकल बिटकॉइन वो कंपनी के पॉइंट टाइम लास्ट में मैंने खरीदा था अराउंड $18,000 का प्राइस बिटकॉइन का. सर मार्केट का प्राइस, और उसके बाद मैंने उसको क्लाउड माइनिंग पे डाला. मैंने पहला प्रोडक्ट नहीं लिया. तो आई बॉट इट एंड स्टे किया. उसके बाद सेकेंड डे पे इलेक्शन बंद हो गई, तो ऐसे करके आई इंटर्न एंड दैट वाज बिगर मिस्टेक. तो उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया. तो वन ऑफ द चैलेंज आई सी जब भी हम माइग्रेट करते हैं फ्रॉम Web2 to Web3, लर्निंग इज अ बिगर चैलेंज. बिना लर्निंग के घुस जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई लाइक वॉलेट ड्रेन का कॉन्सेप्ट. तो मेरा वॉलेट ड्रेन हुआ 2 times, सो आई लॉस्ट कपल ऑफ डॉलर्स देयर. फिर मैंने लूना इन्वेस्ट किया, एंड देन रात सुबह का लूना जीरो हो गया. सो देयर आर लॉट ऑफ क्रैशेस. लूना क्रैश देके देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग करना शुरू किया, ऑप्शंस ट्रेड करना शुरू किए, एंड देन जीरो. So there are a lot of financial risk. So मैंने काफ़ी ज़्यादा lose किया while trading. Though I made a lot of money with airdrop. So that was balanced out. So I made like around 5 lakhs, 10 lakhs loss किया in crypto market from beginning to here. And then I made around same amount of money by airdropping and trading. Holding same thing. So I hold a couple of tokens, made 2x, 3x, 4x from there. And when new tokens invest किया 5x बनाया, so I made money out of it. So one thing that I think which everybody should understand, that whenever you are entering Web3, learning is a key concept. Learn how to own yourself. वॉलेट कैसे रखना है, कहाँ होल्ड करना है. आई गॉट माय हार्डवेयर वॉलेट, तो मैं भी वहाँ रखता सारा पैसा. आई डोंट टच ऑन कस्टडी वॉलेट. बाइनेंस पे ट्रेड नहीं करता हूँ. आई डोंट डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेड. So I keep everything on decentralized wallet, use decentralized exchanges, everything I do on decentralized one. Bigger money, I keep it on my wallet. छोटा मोटा trade I can do it, but mostly पैसा मैं वहीं रखता हूँ.
अब तो मार्केट काफ़ी ओवर हो गया है. So now if you need to convert your you can use your word directly to stay there. The other platform are coming. So there are easy access has been given to people. They are directly convert the people. So a lot of people is coming. But I guess learning is a key concept. So whenever you enter, learn before you invest or before you enter any industry. जस्ट एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा. आई थिंक यहाँ पर काफ़ी सारे जन हैं. वी ऑल आर बीन एक्टिव पार्ट ऑफ इंटरनेट. But the beauty of blockchain is it's being controlled by the community. और community में कौन है जिनसे आप जुड़े हो. So अगर यहाँ एक प्रोजेक्ट की बात करूँ तो it's not the decision making by 6 people who are sitting here or 2 more other people. It's all about कि आप जिस community के अंदर हो उसी की voting rights से ही वो community आगे grow करेगी. That's why learning about blockchain, getting into the right community is very important. अगर मैं कॉइन का नाम बताऊं जो 100x होने वाला है तो बाय करोगे? नहीं बाय करोगे. और सोर्स क्या है उसका? टिप आ गया मेरे पास. हाँ, इनसाइडर टिप आ गया. मिल जाएगी, ठीक है. बस एक ही इन्वेस्टर बैठे हैं यहाँ पे. और मैं ऐसी ना यहाँ से टिप्स लेने वाला हूँ सारे स्पीकर से. कॉइन से रिलेटेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है. ये इन्वेस्टर एक ही बैठा है. पूरी देखो ऑडियंस है यार, बाकी कोई भी नहीं इंटरेस्टेड. ठीक है. स्पीकर्स के लिए यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा चैलेंज है जो मुझे आप लोगों से टिप चाहिए. ऑफ कोर्स विद स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होगी, बट आपको कोशिश करनी है वन लाइनर जो कहते हैं. स्टार्ट करें विकी भाई. तो सबसे पहले कि अगर आपको वेब3 में अपना डोमेन लेना है तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं? $2 you can get lifetime. It's less than a coffee right now. So like $2 में मेरे को lifetime के लिए एक डिजिटल आइडेंटिटी मिलती है. तो मैं उसको क्यों ना लूँ? मेरा मीडिया से कनेक्ट हो रहा है, मेरा ईमेल उससे कनेक्ट हो रहा है, मेरी वेबसाइट उससे कनेक्ट हो रही है. आने वाले टाइम में लाइक दुबई यूएस में राइट नाउ पेमेंट भी उससे कर सकते हैं अपनी डोमेन से. इंडिया में बहुत अच्छा हो गया है. तो वाई नॉट $2 में अगर आपको डोमेन मिल रहा है तो और इससे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिंग क्या हो सकती है? देखो वन लाइनर से एक्सीड हो गया. बल्कि भाई आपके लिए चैलेंज है वन लाइनर तक फोकस रखना. तो एडवांटेज ऑफ एंडलेस डोमेन ओवर अदर प्लेटफॉर्म्स. The best domain buying platform for Web3 which is completely decentralized. तो सार्थक से हमारे लिए क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ बिटकॉइन माइनिंग. Hold on for dear life. विशाल आपके लिए क्वेश्चन बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपर्स हु वांट टू एंटर इनटू JavaScript. ठीक है. तो अगर अभी किसी को भी स्टार्ट कर रहा है इन वेब3 बीइंग अ फाउंडर या को-फाउंडर या एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करनी है तो व्हिच इज द स्पेसिफिक नीश दैट ही और शी शुड टारगेट? Okay, so can I have a like huge round of applause for all the panelists?